Good morning, student. Today we will discuss on budgeting in front office. Budget. Budget means an annual estimates of revenue and expenditure. ठीक है, बजट का मतलब कि एक हमारे पास एस्टिमेट होता है, ठीक है, पैसों का, कि हमारे बजट हमारे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इतने पैसे खर्च होंगे, उसके लिए हमने पैसे लेने, ठीक है। जैसे कि आप अपने पॉकेट मनी के लिए अपने फादर से या मदर से पैसे लेते हैं, तो आप बोलते हो कि मुझे इस मंथ का 1000 दे दीजिए पॉकेट मनी, क्योंकि मेरे ये खर्चे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, आपने बुक्स परचेज़ करनी है तो आप बढ़ा देते हो, आप बोलते हो इस बार मुझे 1500 देना, मेरा इसमें नहीं चलेगा काम। या आप बोलते हो कि जो भी ऑयल पेट्रोल वगैरह है आपकी स्कूटी के लिए, या आपकी टैरिफ जो भी आप किराया देते हैं ऑटो के लिए, बस के लिए, तो वो बढ़ गया है, इसीलिए अब मेरा बजट उसमें बढ़ा दो, ठीक है। ये जो है छोटा सा एक हमारे घर से ही, हमारे आप डेली रूटीन से ही ये वर्ड शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर हम इसे होटल के कंटेंट्स में बात करें तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपने लिए जो पैसा इशू करवाता है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, दैट इज़ कॉलिंग बजट, ठीक। बजट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड्स arranged according to an ordinary basis, covering some or all activities of an enterprise for a definition period of time. वही बात होगी कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ठीक है, हमने जो एस्टिमेट लगाया है पैसों का, बजट, दैट इज़ कॉलिंग बजट. Budget is an estimate of government revenue and expenditure for a forthcoming financial year. Budget is a statement of anticipated result expressed in numerical terms. It acts as a basis for continuous comparison of actuals with forecasted figures. In every organization, one of the most important aspects of management is control. The control techniques may be divided in two categories. First is traditional control techniques. Second is modern control techniques. In traditional control techniques, we include break-even analysis, standard costing, rate analysis, internal audit reports, personal observation, statistical data, and budget, etc. In modern control techniques, we include PERT, Program Evaluation Revenue Technique, and second is CPM, Critical Path Methods, and third is time networking analysis or operation research. Because of the high unit cost of product and also high labor cost in the hotel industry, as well as for other items of supplies, expenses and services involved in each department of the hotel, it is important that management of each department of the hotel budgets its operations to a desirable or at least necessary goals. This becomes the responsibility of each head of the department or manager of the department of the hotel to prepare its periodically or annual trading period budget. These departments' budget in turn help the GM or MD, general manager or managing director, or whoever is responsible for planning to prepare a periodical annual trading period of budget of the hotel in totally. Budgeting is a planning process, hence it may be said that one budget he is planning future operation in respect of a definite period of time. It is one of the most important long term planning functions of the management. इस सारे पैराग्राफ में ये बात की गई है कि जो हमारा बजट है वो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए भी बना सकता है, या एक पर्सन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए बजट बनाता है। बजट किसके लिए बनाया जाता है? एक मॉनेटरी टर्म है, पैसे का लेन देन है बजट का मतलब, और
इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स का उनका बजट डिसाइड कर दिया जाता है, उन्हें पैसे इशू कर दिए जाते हैं। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ने कहा कि मुझे 1 ईयर के हिसाब से मेरा फाइनेंशियल ईयर का जो खर्चा है वो लगभग 10 लाख का है, तो फाइनेंशियल ईयर के लिए उसे 1 साल के लिए मतलब उसे हम 10 लाख इशू कर देते हैं। ठीक है, फिर उस सारे बजट का वो हिसाब रखता है, जो कहाँ उसने खर्च किए, क्या एक्सपेंसेस उसने किए, ठीक है, क्या वो नई मशीन लेकर आए, ठीक है, डिपार्टमेंट में कौन सा नया सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट किया है, उस सारे पैसे का वो ब्यौरा रखते हैं, अपने पास हिसाब किताब रखते हैं। और उसको जब बजट आपने इशू करवाना है उसके लिए भी पहले वो डिटेल में उसे बना के देंगे कि मुझे 10 लाख इस वजह से चाहिए कि मेरा यहाँ पर खर्च होगा और मैंने ये सॉफ्टवेयर्स लेने हैं, मैंने एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, ठीक है, मैंने उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका सेट करना है, ब्ला ब्ला। वो सारी चीज़ें आपके बजट में इन्वॉल्व हो जाती हैं। फ्रंट ऑफिस का बजट जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपने लिए बनवाता है, और फाइनेंशियल ईयर में उसे सारा हिसाब भी देना पड़ता है कि 10 लाख में से मेरे 8 लाख यूज़ हुए हैं और 2 लाख मेरे अभी बच गए हैं, दैट इज़ नॉट इन यूज़। ठीक है, तो होटल में ये जिम्मेदारी एक जनरल मैनेजर की भी हो सकती है, अकाउंट ऑफिसर की भी हो सकती है, इट्स डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। ठीक, A budget is a statement expressed in monetary or quantitative terms reflecting the policies of a business and determining business operation in respect of a particular training period. Most budgets are prepared in monetary terms. For example, cash budget, sale budget, labor cost budget, budgeted profit, budgeted profit and loss account. Suppose a hotel decide to push its sale to 10 lakh in a year. Obviously, this would call for formulation of suitable policies and regard to purchase, production and sales. The hotel may decide to reduce the price of the goods or offer other incentives to the guest. इसमें ये कह रहे हैं कि अगर एक होटल, ठीक है, अगर एक होटल अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि वो अपने जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी सेल बढ़ाने के लिए वो उसमें कुछ इंसेंटिव्स, उन्हें कुछ बेनिफिट देगा, किसे, गेस्ट को, तभी गेस्ट उसे परचेज़ करेगा ना। अगर आपको क्या है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में, मतलब कि अगर आप एक रूम देखने जाते हो रिसेप्शन पे, फ्रंट ऑफिस आपको बताता है कि अगर सर आप ये वाला रूम परचेज़ करते हो 5000 वाला, तो इसमें आपको सर लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर तीनों मील्स प्रोवाइड होंगे, ठीक है। और सर अगर आप ये 4000 वाला रूम से परचेज़ करते हैं, हायर करते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ रूम टैरिफ ही पे होगा आपका, उसमें कोई भी आपका मेजर मील और कोई भी आपको बफे नहीं दिया जाएगा। तो आप यही सोचोगे कि 4000 में मुझे एक सिंगल रूम मिल रहा है, ठीक है, और उसमें आपको 5000 में खाना भी मिल रहा है प्लस आपको रहना भी मिल रहा है, तो आप 5000 वाला रूम प्रेफर करोगे। इससे क्या हो रहा है, आपका भी प्रॉफिट हो रहा है, आपको लग रहा है, ठीक है, और इसके साथ साथ होटल भी अपने सेल बढ़ा रहे हैं कि कहाँ 4000 वाला रूम उन्होंने गेस्ट को सेल करना था, उसकी बजाय वो 1000 फालतू देकर अपना रूम सेल कर रहे हैं, ठीक है, ऑफर्स देते हैं वो। उसके बाद आपका आता है काइंड्स ऑफ बजट। क्या है काइंड्स ऑफ बजट? प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्ट कॉस्ट बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैश रिवेन्यू बजट, सेल बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, लेबर बजट, लेबर रिलेटेड एंड लेबर टैक्सेस बजट, मटेरियल बजट। दीज आर द काइंड ऑफ बजट्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द होटल, ठीक है। इनके नाम से ही क्लियर है। प्रोडक्शन बजट, जहाँ पर हम सामान के प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ के लिए, जैसे कि किचन डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट बजट, जहाँ पर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे कि सर्विस में आप बेच रहे हैं, फ्रंट ऑफिस में आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विस में प्रोडक्ट क्या हुआ आपका, खाने से रिलेटेड, पीने से रिलेटेड, ठीक है ना, बेवरेजेस, फूड।
और आपका अगर बजट फ्रंट ऑफिस के कंटेंट्स में बात की जाए तो रूम हमारे लिए एक प्रोडक्ट क्या है, रूम है फ्रंट ऑफिस के लिए, हमने रूम को सेल करना है, दैट इज़ आवर प्रोडक्ट। ठीक है। परचेज बजट कि आपने परचेज़ क्या करना है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन्होंने अपनी परचेज़ रिक्वायरमेंट जो लिख के दी है वो परचेज़ डिपार्टमेंट परचेज़ बजट के अंडर आएगा वो। ठीक है। इसी तरह इनके नाम से एक्सप्लेन है, इनको करना है। जैसे कि प्रोडक्शन बजट बेस्ड ऑन द सेल्स taken into account of the stock level is desired to maintain. Once the sale budget is finalized, it is possible to determine the quantity of goods to be produced to meet the sale forecast. ठीक है कि हमने इतना सेल करना है, अगर एक साल में हमने 10 लाख प्रोडक्ट सेल करने हैं तो उसके लिए प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी, उस प्रोडक्शन के ऊपर जो कॉस्ट आएगी उसके लिए हमें एक बजट लेना पड़ेगा, दैट इज़ कॉलिंग प्रोडक्शन बजट। ठीक है। सेकेंड इज purchase budget. Purchase budget show the purchase to be made during the budget period. In some cases, purchase budget may deal with the purchase of raw material only, while in other cases it incorporates the purchase of all direct or indirect material for as also fixed assets and service like electricity, gas, etc. जो भी हमने होटल में परचेज़ करना है सामान, चाहे वो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना हो, चाहे हमें वो फ्रंट ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना हो, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द परचेज बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इट पॉइंट to the plan concerning addition, improvement and replacement of all the fixed assets during the budget period, but the time frame of this budget may not be restricted to just one year as in case of other budget. This is because plants, addition, acquisitions of land building, copyrights, patent have to be planned year in advance, and also it require considerable time to carry them out. It serves a device for controlling capital expenditure as also for laying down priorities in expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो हमने मेन पैसा लगाया है, कैपिटल हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है, ठीक है, उस पर जो खर्च होगा। जैसे कि हमने अपने होटल का नाम, हमने कोई कॉपीराइट करवाया है, ठीक है, हमने अपने पेटेंट, हमने कोई लोगो है, ठीक है, उसको पेटेंट करवाया है, उन सब के ऊपर जो खर्चा होता है, उनकी जो हमने 1 ईयर की पेमेंट देनी होती है, फीस देनी होती है, दैट इज़ कॉलिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। वो सारे खर्चे आपके इस बजट में आते हैं। कैश बजट नाम से क्लियर है कि जो हमें कैश चाहिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को चाहिए, उसके लिए कि मतलब आप ये कहते हो कि मुझे इन हैंड कैश मुझे 10,000 चाहिए, ठीक है, आप कहीं घूमने जाते हैं, आप प्लान करते हैं, तो आप बोलते हो मेरा 20,000 का टोटल खर्चा है इस ब्ला ब्ला विज़िट पे, ट्रिप पर, ठीक है, तो जिसमें से आप बोलते हो कि 10,000 तो मेरा फिक्स है जो मैंने ट्रैवलिंग में देना है, अकोमोडेशन में देना है, बट 10,000 कैश इन हैंड होगा मेरे पास, ठीक है, कैश कितना होगा 10,000। 20,000 आपने बजट बताया, लेकिन आप 20,000 हाथ में लेके नहीं चल रहे, आप कह रहे हो कि मेरे को खर्चे के लिए 10,000, 10 से 5,000 चाहिए, जिसमें से कभी कहीं खाना खाना पड़े, कोई सामान मुझे अचानक से ख़रीदना हो, शॉपिंग करनी हो, ठीक है, दैट इज़ द कैश बजट, ठीक है। और जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि अकोमोडेशन पे आपने खर्च करा, ट्रैवलिंग पे आपने खर्च करा, ठीक है, वो आपका अलग हो गया। कैश का मतलब जो आपके कैश इन हैंड है या आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, आप पेटीएम के थ्रू जहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, कैश बजट। इसमें पूरे होटल का कैश बजट इन्वॉल्व होगा कि हमें ये इतना कैश चाहिए अपनी डेली रूटीन के लिए, ठीक है, अचानक से आपको कुछ लाना हो, ठीक है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजटरी कंट्रोल, टू गिव अ पर्टिकुलर practical expression to the aim and objective of the business, to provide a detailed plan of the front office operation with respect to a particular trading period, ठीक है, to ensure better cooperation of various department, to set benchmark against which the managerial performance is to be measured, to ensure an economical use of the resources of the business. Budgeting serves
to clarify the program, measure efficiency and provide definition plan to all the concerns। कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको लेकर हम बजट करते हैं, कि हमने मैनेजमेंट को दिखाना है कि हमने इतने पैसे लिए थे तो हमारे यहाँ खर्च हुए। दूसरा, हमें आपस में बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ और अपने डिपार्टमेंट के साथ कॉर्पोरेट होकर चलना पड़ता है, और एक बेंचमार्क हो जाता है कि हमने साल के 10 लाख खर्च करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास हमें अपनी परफॉर्मेंस को उसके अकॉर्डिंग मेजर करना है, ठीक है, टू इंश्योर द इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ द। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हमें रिसोर्सेज मिले हैं उसको हम बहुत अच्छे से यूज़ करें, किसी भी रिसोर्सेज को मिसयूज़ ना करें, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ साउंड बजट की कुछ बातें, कुछ ज़रूरी बातें जो एक बजटरी कंट्रोल में बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। डिफाइन द क्लियरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बजट। हमें अपने बजट में पहले ही क्लियर करना चाहिए साफ साफ कि ये इस बंदे की जिम्मेदारी है इसको प्रिपेयर करने की, ठीक है, दूसरे बंदे की जिम्मेदारी है उसे पूरा करने की, ठीक है। कहने का मतलब है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीज ऑल्स आर मेंशन इन क्लियरली बजट। सेकंड, साउंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है, फ्रंट ऑफिस में फॉर एग्जांपल कि आप रिजर्वेशन डिपार्टमेंट है, रिसेप्शन है, ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन है, ठीक, कैश है, ये सब डिपार्टमेंट्स होते हैं फ्रंट ऑफिस के अंदर। इन सभी को डिफरेंट आपने 10 लाख लिया है फ्रंट ऑफिस के लिए, बट 10 लाख कितने हिस्सों में डिवाइड होगा, आपके जितने सब सेक्शंस हैं। मान लीजिए आपके पास 2 है सेक्शंस, ठीक है, तो 2 सेक्शंस में मतलब आपने कहा कि जो रिजर्वेशन है, रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पर उस सेक्शन के लिए हमें सिर्फ 4 लाख बहुत है, तो ठीक है, 6 लाख फॉर आपका रिसेप्शन एरिया, ठीक है, तो 4 लाख उस डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। तो 4 लाख की उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने उसे अच्छे से प्रिपेयर करना है कि हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना है, उनमें किसी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ये सारे जवाब देने के लिए कि आपने ये पूरा 1 साल के अंदर पैसा कहाँ खर्च किया है। साउंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, ठीक है, क्लियर थिंकिंग इज एसेंशियल फॉर बजटिंग, एन एक्यूरेट एंड एडिक्वेट सिस्टम ऑफ मेजरिंग and recording performance, timely and regularly system of reporting of current events should be developed to keep responsible people informed to actual result for timely correction. Clearly defined policies should be established for all the phase of the firm. Free and frank communication between the different department and member of the organization. Efficient forecasting, human factor is very important in budgeting. Due credit should be given for the job well done. Person unable to achieve budget result should be held accountable. Budget should be designed only as a tool, not a replace management. Budget should not be overdone to seriously compromise the authority of the managers. The system should be designed to meet the need and the conditions of the particular enterprise. Key to effective budgeting is developing and providing standard by which a manager's work can be translated into needs for manpower, material, money and other sources. Budgetary control should not be used in situation where other control systems are more suitable. It should not be implemented to all the departments in first go and should be started on a small scale and extended as experience is gained. ये आपके जो थे ये हमारे साउंड बजटरी एसेंशियल्स फॉर साउंड बजट, ठीक है, हमारे इसके पॉइंट्स थे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।